हमजा बिन मंशा, सर आपका टॉपिक क्या था? सर मेरा नट्स एंड बोल्ट्स। अच्छा, रेडी है? यस सर। मैं आपको राइट दे रहा हूँ, आप शेयर करें काइंडली। यस सर। तो शेयर हो गई सर। हाँ जी, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, आप स्टार्ट करें। ठीक है सर। So my name is Hamza Mansha and I belong to an army family. So that's why I've been moving around the country. I've been studying in different schools. I did my matric from Risalpur School, APS Risalpur, and I did my FSC from Gazen Boys High School, Lahore. And now I'm doing mechanical engineering from University of Lahore. Okay, your presentation, the file of your presentation is not open yet. So आपकी जो फोल्डर है वो नज़र आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे तो शो हो रही है, मुझे शो हो रही है सर। आप ऐसा करें, इसको बंद करके प्रेजेंटेशन को शेयर करें डायरेक्ट। शेयर की ऑप्शन से प्रेजेंटेशन शेयर करें। प्रेजेंटेशन ओपन रहने दें, फिर शेयर करके यस सर, प्रेजेंटेशन। करता हूँ। सर अब शेयर हो रही। हाँ जी, बिल्कुल। Sir, objective and aim of life. The aim of life is to become successful and have grip on what I am doing. As I am doing my mechanical engineering, so I want to have grip on my skills and all that what I am doing. So it requires hard work and all that things that are required to have the grip on what you are doing, so you can do that thing better. Favorite personality. Favorite personality is my father is my favorite personality. He's been retired from army. He's devoted his 26 years of his life to army, to this country. So I just want to follow his footsteps and want to achieve what he has achieved. ओके। What is success? हाँ जी। Sir, for me, success is to achieve an inner satisfaction. It's not about the things you get. So if you are not having a big dream or big goals, you can easily satisfy yourself with small targets you achieve at points in your life. That is what matters the most. Your satisfaction matters the most. Things that cannot change anything. So, sir, the topic of my presentation is nuts and bolts. ओके। We will start from the definition of nuts and bolts. What is nut and what is bolt? A nut is a hardware fastener with a threaded hole inside. Outside, sir. Nuts are almost always used opposite a mating bolt, fasten a stake of parts together. These are used to hold things together, uh, to join two things together, to join various things together, to hold them tightly and
Bolt is a type of fastener made from metal comprised of head and chamfer along with the shaft with a helical ridge called thread. So basically, nuts and bolts have threadings, so they can fit in each other. Okay. Materials is, basically the material is carbon steel, alloy steel, and manufacturing is further. I will explain the manufacturing step by step. So first we will discuss the manufacturing of bolt and then the nut. So the basically the a steel wire rod is taken that has been dipped to soften it for 30 hours in a furnace, around 30 hours in a furnace, and then it has been dipped into sulfuric acid to remove the rust and different particles that are sitting on it, and then it is coated with phosphate compound that is a lubricant used to sit on the steel to prevent it from rusting and from stuff like that. Then the process starts from cold forging. Cold forging is to put a steel wire rod into a die to shape it the desired shape we want, to get the shape that we want at, and this is done at room temperature. Then after this, uh, through various dies at high pressure, it is passed. So the steel rod is straightened, and then Okay. it is cut into pieces that we require. The extra piece becomes the head, and from the dice ke through, sir, it is made. The extra piece is made head from dice, and then a pointer tool is made to make its opposite side, the second side of that rod. Then after that, sir, high pressure threading is done with rollers at high pressure, and then after that, sir, it is what we require. It is made. Uh, This is a flow chart. Steel wire rod is taken, then straightened, then cutting, then head making, trimming, thread rolling, finish bolts, and these are the shapes which we'll get after every step. Let's move on to nuts. So, in bolts we used cold forging. सर आसान हो जाए. हाँ जी, ठीक है.
So let's start. So the difference between making of bolt and nuts is that it is done with cold forging, and the nuts are made from hot forging. It is heated up to 75% of its melting point, and then it is treated. So, as we see in the making of bolts, exactly the same thing is happen in nuts. It's first we will cut the steel into small pieces called slugs, and then it is heated to 1200 degrees Celsius, and that heated material is just passed through hydraulic hammers to give it the shape of hexagon or whatever that shape we desire. And Okay. then it is passed from dies, which makes holes in between it, and then a Threading. material then a tool is used that is called taper to do threading, and then it is passed to an oven for an hour, rapid cooling after that to make it more hard, and then the quality control checks it, and that is all. Now I will Okay. show you उसकी वीडियो है? yes sir, I'm ठीक है जी. showing a video. इसको एक्सप्लेन भी करें साथ साथ ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है. So this is that process of uh, lubricate होता है sir, is a steel with this material, so we can use it for cold forging. This is how it has been straightened, and this is how it is cut into pieces, and this is how it has been making heads of the bolts. This hammers made the then the other side of the bolt has been made. It is made as a pointed shape, which the nut has to. This is a process of threading. So now it's the process of making nuts through hot forging. ठीक है जी. थैंक यू. बिलाल हसन 131. Thank you, sir.
Yes, sir. आपकी रेडी है प्रेजेंटेशन? Yes, sir. इन्हें शेयर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन। Yes, sir. The manufacturing of piston. ठीक है जी, शेयर हो रहा है, देखें। आपसे शेयर हो रहा है? Sir, नहीं सर, नहीं होगा। आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है? सर मोबाइल है। तो लैपटॉप पे ही बैठ जाया करो जिस दिन प्रेजेंटेशन है। वो लैपटॉप का थोड़ा मसला बना हुआ है, मतलब कि बिजली नहीं है तो उसकी चार्जिंग भी खत्म हो चुकी है लैपटॉप की। अली हसन जफर। यस सर। बिलाल, आप मुझे प्रेजेंटेशन भेज दो। ओके सर, मैं आपको भेज देता हूँ। सर व्हाट्सएप पे भेज दूँ आपको? नहीं, ईमेल करें आप। सर ठीक, ईमेल बता दें अपनी। मैंने इतनी मरतबा बताई है, mohammad.anas MUHAMMAD। अच्छा जी, अली हसन जफर, आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है? जी सर रेडी है। आप तो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। टॉपिक बताएं मुझे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन है बाय कास्टिंग। आप दोनों का सेम ही है? सर वो बिलाल हसन का बाय फोर्जिंग है, मेरा बाय कास्टिंग है। अच्छा जी, ठीक है जी, आप शेयर करें। ये आरजे अली कौन है? सर हो रही है शेयर स्क्रीन? ये कुछ ज्यादा ही हो रही है, आप कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आरजे अली, मेरा 104 है रोल नंबर, 104 रोल नंबर। 104। आरजे स्टैंड फॉर? सर वो वैसे ही बाय मिस्टेकन लिख दिया, यानी अली ऐसे नहीं आना था, लेकिन वो पहले का ही लिखा हुआ था। यानी सर वो आरजे होते हैं ना रेडियो वाले, ये वो है ये। नहीं राजपूत के नाम से है यार, उस वे अच्छा, में नहीं है, सही हमारा बता ना बनाओ। ठीक है जी, थैंक यू। जी जी सर। अली हसन स्टूडियो जफर, आप सर। स्टार्ट करें। Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my presentation is manufacturing of piston. ओके। First of all, I want to tell you all about myself. So my name is Ali Hassan Zafar and I am from Nankana Sahab. I have done my matriculation from Garrison School Nankana Sahab and intermediate from Kipps College Lahore. My father name is Zafar Iqbal and he is a farmer. अच्छा जी। In sports and hobbies, I love to play cricket and basketball, but my favorite is cricket. ओके। And my hobbies are writing, traveling, watching movies, and watching cricket matches. Objective: if you have no objective, then I think you are wasting your life. My objective is that to make my parents more happy and make their lives easier. So that's why I am studying and wanted to become an engineer. आपके आर योर पेरेंट्स हैप्पी विद यू? जी सर। आर दे सेटिस्फाइड विद योर हॉबीज एंड एवरीथिंग एल्स? सर मेरा शुरू से शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो वो उन्होंने बहरहाल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अभी तो वो खुशी हैं। आप भी खुश हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया?
जी सर, अब खुश ही हैं। आपके फादर फार्मर हैं तो काफी मेहनत करते होंगे, जी सर। तो आप कोई खिदमत वगैरह करते हैं उनकी? सर वो ज्यादातर टाइम गांव में ही होते हैं। तो अभी भी आप तो गांव में ही होंगे ना, कि आप कहाँ पे हो? नहीं नहीं, ननकाना साहब तो शहर है, गांव थोड़ा साइड पे है, अच्छा अभियान अच्छा, वाला। अपनी जमीनों के साथ होते हैं। हाँ जी, वो ज्यादा टाइम उधर ही होते हैं। अच्छा, तो आप शहर में रहते हो? जी जी। चलो, जब जाओ तब तो खिदमत करते हो कि नहीं? जी जी सर, जरूर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आपने पिस्टन? वो कामयाबी का नहीं बताया, कामयाबी किसे कहते हैं आपके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू यू? सर कामयाबी ये है कि अगर आपका कोई गोल है और वो अचीव हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही, तो आप उसके साथ भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो फिर वो सेटिस्फेक्शन कामयाबी होगी? सर जैसे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मुझे अगर अच्छी जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर थोड़ी कम मिल जाती है तो वो भी कामयाबी है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। और अगर नहीं मिलती तो फिर? नहीं मिलती तो फिर वो कामयाब, वो मेरा जो मकसद है वो कामयाब नहीं होगा। फिर मैं और मकसद अपना बनाऊंगा और उसको कामयाब करूंगा। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो कुछ सोचा हुआ है वो पूरा हर हर हाल में करना है, अगर नहीं होगा तो नाकाम हो जाओगे। नहीं नहीं, अगर जो सोचा हुआ है वो पूरा नहीं होता तो हम कोई और चीज सोच लेंगे ना, तो हम ठीक है, उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले कि पिस्टन है क्या चीज। पिस्टन इज एन important component of a reciprocating engine जी। that helps to convert energy obtained by the combustion of fuel in cylinder into useful mechanical power. It is like a disc which reciprocate within a cylinder. It is either moved by fluid or it moves the fluid which enters the fluid. इसके कुछ पार्ट्स हैं और मेन हेड को हम क्राउन बोलते हैं, और रिंग ग्रूव्स हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं। रिंग ग्रूव्स दरअसल 3 साइडेड मशीन्ड सरफेस होती है जो कि पिस्टन रिंग्स को सपोर्ट करती है। और उसके बाद पिन होल है, पिस्टन पिन होल इसका मकसद ये होता है कि कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को ये कनेक्ट करता है, लिंक है इनके दोनों के दरमियान। और पिस्टन स्कर्ट हम ये बॉडी को बोलते हैं। Material for the next is material for manufacturing, that is very important. Piston material and design contribute to the overall durability and performance of an engine. Most pistons are made from cast aluminium alloy, जिसकी वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आती है। The light weight of aluminium reduces the overall mass and force necessary to initiate and maintain acceleration of the piston. जो पिस्टन का एक पार्ट है वो हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि कास्ट आयरन की इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा होती है टूवर्ड्स द हीट एंड डिफरेंट लोड्स। ये अब कास्ट आयरन अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रिटेन कर सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर और लोड में और टेम्परेचर में। इसकी वजह से हम पिस्टन रिंग्स को कास्ट आयरन से बनाते हैं। कास्ट आयरन कहते किसको है? मटेरियल है। नहीं, इसको कास्ट क्यों कहते हैं, खाली आयरन क्यों नहीं कह देते? ये आइडिया नहीं है सर। नहीं आइडिया? चलें, कोई बात नहीं। ऐसा आयरन जो कि कास्टिंग से बनता हो, ठीक है, या जिसके ऊपर कास्टिंग प्रोसेस परफॉर्म हो सकता हो।
उसको कहते हैं। जी जी जी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले कास्टिंग, उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट, फिर डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस आते हैं, और एंड पे पिन फिटिंग, और उसके बाद इंस्पेक्शन। सबसे पहले कास्टिंग में हमारे पास फाउंड्री होती है, फर्नेस, एक फर्नेस होता है जिसमें हम एल्यूमिनियम के को डाल देते हैं और वो हीट होते हैं। उसके बाद वो जो मोल्टन मेटल है उसको हम निकाल के फिर डाई में डालते हैं, और फिर उसको कूलिंग के लिए कुछ देर रखते हैं। The next process is heat treatment. Heat treatment involves the use of heating or chilling normally to extreme temperatures to alter their physical and chemical properties without changing the desired shape. Heat treatment is often associated with increasing the strength of material. तो अब जब हमारे पास हमने पिस्टन को कूल डाउन होने के बाद हमने डाई से निकालिए, सबसे पहले हम उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको उनको वर्टिकल मिलिंग मशीन के साथ उनको रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहॉर्निंग। तो हम पिस्टन को डीहॉर्न करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको हम दोबारा उसको हीट करते हैं हार्डनिंग के लिए, ताकि पिस्टन हमारा हार्डन्ड हो जाए। हार्डन हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। हार्डन्स का हार्डन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यील्ड एंड स्ट्रेस के, तो इसलिए हम रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए उसको पहले हार्डन करते हैं। उसके बाद हम टर्निंग ऑपरेशन लेथ मशीन पे आ जाते हैं और टर्निंग ऑपरेशन से उसको स्मूथ करते हैं। CNC lathe machining. At the first, the skirt of the piston is finished. After that, CNC is programmed and finish the crown. 5-axis VMC machining. तो सबसे पहले हम ऑयल स्लॉट्स बनाते हैं। ये VMC क्या है? मशीन का नाम है। हाँ, कौन सी मशीन का नाम है? इस पे हम 2 काम करते हैं, ऑयल स्लॉट्स और पिन बोर बनाते हैं। नहीं, मशीन कौन सी है? ये CNC मशीन है, उसकी ये टाइप है। ये VMC से क्या बनता है? ये नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? अच्छा, चलें नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट आता है ग्राइंडिंग का प्रोसेस। ग्राइंडिंग में हम ऑलमोस्ट कैम ग्राइंडर यूज करते हैं उस स्कर्ट ऑफ द पिस्टन को ग्राइंड मशीन करने के लिए। कैम ग्राइंडिंग इंश्योर्स द पिस्टन विल ग्रो इवनली इन द बोर ऑफ द डायमीटर। उसके बाद कोटिंग का प्रोसेस आता है। कोटिंग के प्रोसेस के लिए स्क्रीन प्रिंट या स्प्रे टेक्निक्स यूज होती हैं। हम टिन कोटिंग करते हैं और यूजुअली एट द एंड द फाइनल इंस्पेक्शन में हम रिस्ट पिन को फिट करते हैं। उसके बाद उस पर स्टैंप लगाते हैं, उसका वेट लिखते हैं, और फिर उसकी पैकिंग करते हैं, और फिर हमारा पिस्टन जो तैयार हो गया। क्या कोई वीडियो है इसकी? जी सर, है जी। चल नहीं रही मेरे पास, फाइल वैसे भी पड़ी हुई है, मैं वो दिखा देता हूँ।
ये आप बताओ ना, कास्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है, बताओ तो सही। जी सर, ये फर्नेस में अभी हमने वो एल्यूमिनियम के इग्नोट्स को डाला, ये यहाँ पे कास्टिंग होगी। ये हमारे पास डाई है, जी। ये मोल्टन मेटल को फर्नेस से निकाल लेंगे लैडल के साथ, और ये डाई में हम डाल रहे हैं। ये यहाँ पे अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव कर रहे हैं। इसका नाम क्या था, डी हॉर्निंग? यस सर, डी हॉर्निंग। अच्छा जी, ठीक है। ये अब हम लेथ मशीन पे आ गए, यहाँ पे हम टर्निंग ऑपरेशन करेंगे सरफेस स्मूथ करने के लिए। ये हम सीएनसी लेथ मशीन पे आ गए। इस पे हमने रिंग रूव्स बनाने हैं और स्कर्ट की फिनिशिंग करनी है। ये 5 एक्सिस वीएमसी मशीन है, यहाँ पे ऑयल स्लॉट्स और पिन बोर बनेगा। ये अब यहाँ पे कैम ग्राइंडर के साथ ग्राइंडिंग हो रही, स्कर्ट की, सिर्फ स्कर्ट की ग्राइंडिंग होती है। ठीक है। ये इंस्पेक्शन करें कि साइज पूरा ठीक है कि नहीं। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा जी, आपकी जो क्लास नेक्स्ट होगी उसकी जगह पे हम लोग 2 क्विज अरेंज करेंगे। हो सकता है वो क्लास में हो सकता है वो क्लास की टाइमिंग में ना हो। अगर तो क्लास में हो तो ठीक है,
नहीं तो क्लास नहीं होगी और क्विज हो जाएंगे दो उसकी जगह। वो जो टाइमिंग बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। सर नेक्स्ट वीक थर्सडे वाली क्लास जो है। जी नेक्स्ट वीक में नहीं, इसी वीक में जो 2 घंटे वाली क्लास है उसकी जगह पे हम लोग क्विज अरेंज करेंगे। सर उनका सिलेबस सर। सिलेबस चैप्टर नंबर 24, 25 एंड 26। 26 में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे। कुछ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड थे जो कि हमारे पास सर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग होती है, और इलेक्ट्रिकल के 1-2 ही थे, वो ये वायर कट थी सच, ठीक है। और उसके अलावा जो चैप्टर 25 है वो ग्राइंडिंग से रिलेटेड है, और 24 स्लाइड्स मैंने आपको शेयर की हुई हैं तीनों चैप्टर्स की। और 23 मिड में था या नहीं था? सर था सर, कुछ टॉपिक्स आप मतलब उनका दिया था उसका। अच्छा, तो फिर 23 से नहीं होगा, 24, 25 एंड 26 से आपका जो है 2 क्विज होंगे। सर वो ओके एक सर। मैसेज आया था कि इस वीक में जो है वो क्विजेस नहीं होंगे क्योंकि वो सब कैंपसेस में मिड्स हो रहे हैं इसलिए। यस सर। हाँ जी, वो मैसेज आपकी परसों है ना 19 को? जी सर, हाँ जी, 20th तक था उसमें 20 तक था, तो 20 तक। हो सकता है कि मैं 20 को ले लूं। अगर 19 या 18 को लिया तो उसकी टाइमिंग ऐसी रखूंगा कि शाम के वक्त रख लूंगा, ठीक है। जी सर, फिर शाम को रखिएगा ताकि वो पेपर उस टाइम ना हो तो स्लेट नॉर्मल चले। ठीक है जी, तो अगर तो क्विज हो रहे हुए इस वीक में आसानी से मैं देखूंगा, तो आपके क्विज होंगे 2 सर घंटे वाली, आपकी क्लास नहीं होगी। क्योंकि सर किसी भी टीचर ने नहीं लिए हुए ना क्विज, वो सब यानी कमिंग वीक में ही लेंगे। ठीक है, असल में मैंने पहले नहीं लिए हुए, तो मैं चाहता हूँ कोई क्विज हो जाए, ताकि पहले कुछ टीचर ने पहले ले लिए हैं सेकंड वीक में, मैंने तब कोर्स करवा रहा था आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अब क्विज हो जाए इसी वीक में ही। तो हो सकता है 20 को अरेंज कर लूँ, नहीं तो उससे पहले अगर लिया तो मैं शाम की टाइमिंग रख लूँगा, ठीक है। एंड सर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्विज। हाँ जी, एमसीक्यूज होंगे, 2 क्विज होंगे आपके 10-10 मिनट के, तो उनके 5-5 मार्क्स होंगे। और सर एमसीक्यूज उसमें 5 होंगे या 10 होंगे? एमसीक्यूज अभी मेरे ख्याल में 10 होंगे एक क्विज में, ठीक है। तो चले आप सर सही है, लेकिन सर काइंडली अगर 10 एमसीक्यूज देने तो 12 मिनट दे दीजिएगा। वो स्टार्ट में लॉग इन और स्टार्ट में जरा इशू आता है सबमिशन का, वो तो उसका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। वो मैं कोशिश करूंगा रख दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, टाइम पूरा ही होगा। ठीक है जी, तो इस फिर 2 घंटे वाली जो क्लास है आपकी वो नहीं होगी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें, उसकी जगह पे उसमें सर सिर्फ क्विज ही होगा? हाँ जी, क्विज होंगे, 2 क्विज होंगे, ठीक है। ओके हो गया सर, ओके हो गया सर। ठीक है जी, आप सर लोग टॉपिक तैयारी कौन करें। सा है? थैंक यू। सर अगर क्विज नहीं भी होता, सर लास्ट क्विज नहीं भी होता फिर भी क्लास नहीं होगी? मतलब क्विज अगर रात को हुआ या संडे को हुआ तो? नहीं, क्विज होगा जरूर, ठीक है। अगर ना अरेंज हो रहा हुआ तो मैं 20 को ले लूंगा। नहीं सर, तो उस टाइम क्लास होगी या क्लास नहीं होगी? नहीं, क्लास नहीं अगर होगी, क्विज ना हो। क्लास नहीं होगी, क्विज होंगे, ठीक है। सर टॉपिक ओके दोबारा सर। रिपीट कर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।